we are going to witness one of the most favorite players of the Goan state, Rajat Kudakar, in action in few moments. Let's see what happens next in a big encounter. We are going to witness Shri Bodgeshwar Bharat facing off against Saptakoteshwar Bali KPM. And the team captain of Bali KPM won the toss and they have elected to field first. Rajat Kudakar and Sunny, the first opening duo, and the bowler Kapil Dev on his bowling mark. Kapil Dev, the bowler on his bowling mark, and yes, let's play, says the umpire. The very first over of power play. Very first delivery, trying to play a slog sweep, one-handed, unsuccessful in the attempt. The very first delivery couldn't anticipate the pitch of the ball, and because of that, it goes off a dot. A 5 overs encounter in this whole tournament. 80 runs is the safe mark. Because even in this tournament, we have seen 70 runs being easily chased. So what will the target that will be put up by the team of Barders in this match? And Rajat Kudakar is started doing what he does best. And his best is hitting those big shots. And the job has been commenced. First one goes down the track. First one goes out of the park for a maximum. DJ. Is being smacked in the very second ball for a big one. And this time has he nicked it? Yes, he has. They are getting finally the big fish in the net. The very next delivery after hitting a big shot, Rajat Kudakar is unhappy with his shot. A small nick off the bat and the ball, and the wicket keeper does the remaining job, and they are getting the big man in the very first over. After hitting a big shot, he goes back to the pavilion. DJ. Another big name of the Goan state who has took Goa cricket to new heights. Sanam Sagaukar makes his way in the middle to accompany Sunny Nanodkar. Rajat Kudakar is being sent back earlier, but still they have one more reason to worry, and that is on the strikers end. The man who gave reverse sweep a new introduction to tennis cricket comes on strike. Very first delivery, one-handed, and he goes there. Doesn't matter, one hands or two. One arm possesses the strength of a mammoth to smack the ball hard, to smack the ball good. And with this boundary, that goes one bounce, scorecard becomes 10 runs, loss of 1 wicket. And this time, yes, exactly what I was saying. A single, will it be taken this time? And he has to depart. Oh no, after that Kudakar, Sanam Sagaukar hits a boundary, gets off the mark, win style. But in the very next ball, his fate is sealed by the run out. So Kapil Dev is very lucky for his team as he is getting the 2 crucial men in the very first over itself, and the names are as big as they can get. Rajat Kudakar in form of caught behind and Sanam Sagaukar in the run out. DJ.
Will very getting the two crucial men here. Newman and it's Vedang at the non-strikers end. Yet another big hitter, commonly known for his strength, fighting those big shots. He can hit that ball really hard. And it's a slower one, deceiving the batter with pace. It has been a roller coaster ride here. This over of Kapil Dev. It was full of ups and downs. Ups, the sixes and the boundaries by Rajat and Sanam respectively, and there are two crucial wickets. So I will say it's a balanced over from both the sides, but still I think the fielding side is beneficial as they are sending the two important men back in the dugout. So 1 over completed. It's 10 for 1. This time a full toss ball at the sticker end. The ball meets the bat, so not much opportunity to hit the ball hard, but should have been a big shot. And yes, after the wicket of Rajat and Sanam, both the batters are a bit silenced as they are trying to hit the ball hard, but still not getting that much success. Will be really a man to watch out for. That will be Sunil Anodkar, usually known for his calculative cricket. He can hit those big shots. He knows how to play slowly and steadily. And it will be a big responsibility of these two batters to make sure that the team reaches an adequate target. But until then, the bowlers will have their fair chances. Kapil Dev set a brilliant foundation. He laid a brilliant one for his team. And surely all the bowlers will try to capitalize. Attempting a reverse sweep, a switch hit this time, but couldn't make a big use of that as the ball stays low and it's a dot. They are trying all innovative shots, but there's no connection again and again. And this time he plays it safely, just driving the ball down the ground as straight as a line. The ball goes and just a single there. Single will take the scorecard, the total of 12. A dozen runs on the scorecard. Yet again a full toss delivery. Let's wait for it. It's a run out. What has happened in the ground? It's a no. Yes, the umpire says they are given their verdict. It's a no delivery. It doesn't matter if you are getting the wicket of Sunil Anodkar. Once again a crucial man has to go down. They are losing wickets like leaves falling out of trees. And now once again yet another brilliant all-rounder that the Goan state has given to tennis cricket. Amrut Werlekar makes his way in the middle. They are attempting to make a big partnership, but the batters are failing again and again. Two men in, you're going to face your first ball and it will be a free hit. And Amrut Werlekar misses his time and only a single will be taken there. Single will make the scorecard towards 13. 14 in fact.
14 runs on the scorecard. The run rate is going slowly and steadily. There must be a big rise in the coming time. And this time, yes, there must be a big rise, as I said. And the batter says, yes, it's time. It's now time to break the silence. It's now time to break the shackles of those dot balls and wickets. And he ends off the over with a big one. And scorecard becomes with a run rate of 10 per over. It's 20 runs and they're losing 3 men. TJ. Diptesh. Very first delivery there by Diptesh in the third over. And only a single is all they can get. Now finally, the big shots that were awaited, we are finally getting them. The batter surely has started the big hitting job for his team. And this time Okawas, will it go all the way? Let's wait for the verdict. And a single hand or both, it's two hands in the air. That means directly out of the park. That's a brilliant shot. You can see it over and over again. Yes, that's it. Outside the off stump. And goes all the way through extra cover. No fielder present. That means it's a big hit. It's a big shot. This time, fielder beneath that, and he takes it this time. A lot of struggle here for the team of Jaipur Yeshwar, and the struggle continues. They were trying to hit each and every ball, but this time the batter fails to do so. It must be Vedang who has to depart. Newman Shailesh. Very first delivery, and doesn't matter. It was a full toss. Doesn't matter if the ball is missed because it's a wide and they are getting 5 runs from that. That means byes plus wide. It will be a gift wrapped 5-run for the team. And this time it's a no ball. They have to do for it yet again.
Hello. Free delivery for Amrut Virlekar. Trying to go away, get the other side, but umpire says it was a legal delivery, so it will be a dot. Deepesh ups and downs in this over. Scorecard becomes 34. This time he goes down the track at the long off region, and only a single it will be there. And with the single, scorecard will now move on towards 35. Yes, they are getting those runs, doesn't matter, but still, only thing that matters is they are losing wickets. A big partnership is essential if they want to make a big target, or if they keep on losing wickets. Much runs won't be there, but I don't think that the batsman cares. Already cares, is hitting those big shots. And just look at the flow of the bat when he took the ball into his arms to hit that ball hard, to hit that ball very hard instead. And it has landed all the way for a massive, huge hit in the crowd. Scorecard this time becomes total of 41. Yet again an expensive over here. Bowler Ganesh and Amrut. Man oh man, what a shot that was. Never did a book by its cover. If you see his stance usually, it's looked like that he's going to play a cool and calm shot. But in the very next moment, it will hit you like a beast. And Amrut Virlekar has started striking the ball hard. Exactly what Jayapureshwar Baades will require here into this situation if they want to cross the 70-run mark. Amrut Virlekar start off things against Ganesh in style. 47 on the scorecard. अमृत वेर्लेकर आता अखेरच्या क्षणी जी भागीदारीची आवश्यकता होती ती एक छोटीशी पार्टनरशिप शैलेश आणि अमृत मध्ये होताना दिसते मोठ्या फटक्यांच्या सहाय्याने. पुन्हा एकदा मोठा फटका, क्रॉस बॅटेड शॉट, जेल खाली फिल्डर, पण यावेळेस अमृतला माघारी परतावं लागेल. अगदी याच एका चुकीचं नक्कीच नुकसान होतं. धावा येत आहेत पण तरी सुद्धा विकेट्स हे निरंतर अंतरावर जात आहेत. त्यामुळे जी एक आशापेक्षा मोठ्या फटक्यांची, एका मोठ्या धावसंख्येची, ती कुठे ना कुठेतरी कदाचित वंचित राहू शकते, कुठे ना कुठे वंचित ठेवू शकते ती भारतीय संघाला. धावसंख्या झाली आहे ती याचबरोबर 47 आणि अजून एक गडी जातोय हा तंबूच्या आसऱ्याला. डीजे Devanan Rudra Zatie. Rudresh on strike. And yes, just like his name, Rudra is showing out his aggressive form. He's showing out his aggressive intent. And alongside this, 50 runs have been completed. They are touching that half century of the team. Scorecard moves on to a total of 53. अगदीच नावाप्रमाणे रुद्र रूप धारण केले जाते रुद्रेश कडून मैदानावर पावलं टाकल्यावर. आणि यावेळेस डीप इन द क्रीजच्या थोडासा आतमध्ये गेला होता, शफल होऊन शॉट मारण्याचा प्रयत्न, अर्थात स्वीपर मिड विकेटच्या वरून, पण यावेळेस बॉलर बाजी मारतोय.
अर्थातच मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल, कारण डेथ ओव्हर्सच्या या कंडिशन मध्ये प्रत्येक मोठा फटका हा बोनस स्वरूपी असेल बारदेश संघाला. पुन्हा एकदा मोठा फटका, दोन फिल्डर्सच्या गॅप मध्ये पुश करण्याचा प्रयत्न, पण चांगली फील्ड तिकडे झाली स्क्वेअर लेग रिजनला डीप मध्ये, आणि त्यामुळे फक्त एक सिंगल तिकडे सापडेल आणि त्या सिंगल धावसंख्या परावर्तित केली जाईल ती 54. 54 या आकड्यावर. शैलेश ऑन स्ट्राइक. पुन्हा एकदा मोठा फटकारण्याचा प्रयत्न, बॅट थोडीशी उशिरा आली, कारण यावेळेस बॉलचं पेस थोडंसं वाढवलं. एक क्विक वन, एक जलगतीचा चेंडू आणि एक शेवटच्या क्षणी एक छोटस व्हेरिएशन, आणि त्यामुळे फलंदाज झाला बीट. याचबरोबर सांगता झाली चौथ्या षटकाची आणि धावसंख्या झाली आहे ती 54, अर्थात 54 धावा. आणि गणन जर विचार केला तर अर्धा संघ हा तंबूच्या आसऱ्याला. And this time a brilliant shot there. A very rare occurrence in tennis cricket, such kind of shots. Govind is being smacked in the very first ball itself. And a brilliant display of ruthless thrashing. If somebody asks you what's brutality, just show them this batting by Rudresh. He steps in and starts off the mark. He gets off the mark with a bang. Starts off the job without wasting no time. And now finally yet again the team of KPM must really think their plans, because if they don't, there are big consequences. This time trying to go big yet again. Only they can fetch a single in the first attempt. Will they look for the second one? Nilesh says let's stay happy with just a single. And with that single, scorecard moves on towards a total of 61. 61 on the scorecard, crossing the mark of 60. Will they cross 70? This time it's a brilliant delivery. The ball was playable is the verdict from the justice panel, and because of that surely it will be given as a dot. 61 धावा धावफलकावर. एक मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल सुरू. फुलटॉस चेंडू, हरलेला फटका, थोडस इकडे फसलाय झेलखाली फिल्डर, आणि यष्ट्यांच्या मागे बॅकवर्ड रिजनला एक सुंदर झेल. शैलेश नावाचं अडसर सुद्धा दूर केलं जात आहे, आणि अखेरच्या क्षणी शेवटच्या ओव्हर मध्ये जी मोठी धावसंख्या होत होती त्यावर अखेरच्या क्षणी रोख लावण्याच्या प्रयत्नामध्ये बॉलरला मिळतं यश. गोविंद स्ट्राइक्स आणि शैलेश जातोय बॅक टू द पवेलियन. डीजे सज्ज होतोय. यावेळेस चेंडू चाललाय तो ऑफ साइडला, अर्थातच वाईडिश लॉंग ऑफ, आणि त्याचबरोबर मिड विकेटच्या अगदी मधोमध चेंडू हा पडतोय, आणि जोपर्यंत फील्ड केला जाईल तोपर्यंत एक सिंगल. रुद्रेशला सांगण्यात आलं होतंच की अखेरचा चेंडू तू खेळायचा आहेस, आणि ते काम जे आपलं होतं प्रवीणला त्याने केलंय, आणि धावसंख्या पोहोचली आहे ती 62, 62 धावांपर्यंत. अखेरच्या चेंडूवर किती असेल धावसंख्या, काय असेल टार्गेट केपीएम संघासाठी, हा टार्गेट डिफायनिंग बॉल. आणि शेवटचा चेंडू अतिशय सुरेख, आणि त्याचबरोबर एक सिंगल मिळेल. रुद्रेश निघेल दुसऱ्या धावेसाठी.
आणि त्याचबरोबर प्रवीणला परतावं लागेल माघारी आणि त्याचबरोबर इकडे लेग बाय स्वरूपात एक धाव मिळते म्हणजे धावसंख्या पोहोचते 63 पर्यंत आणि विजय समीकरण असेल 30 चेंडू आणि 64 धावांचं. या इनिंगची समरी जर आपण पाहिली, रजत कुडाळकर आणि त्याचबरोबर सनी नानोडकर हे आले होते ओपनिंग साठी. रजतचा एक मोठा फटका, सनीचं छोटंसं योगदान फक्त एका धावेचं. सनम साळोकरने मारली एक बाउंड्री आणि त्याचबरोबर तेही परतले माघारी आणि त्याचबरोबर वेदांगने एक छोटासा कॅमिओ दाखवला 13 धावांचा. माफ करा, अमृतने 13 धावा कुठल्या आणि त्याचबरोबर वेदांग सुद्धा एक चांगली कामगिरी आणि अर्थातच शैलेश 7 धावा आणि रुद्रेश अखेरच्या क्षणी कुठल्या 14 धावा आणि त्याचबरोबर अखेरच्या क्षणी हा संघ इथपर्यंत पोहोचलाय आणि 64 या आकड्याचा बचाव करायचा आहे जय बोडगेश्वर बारदेश संघाला आणि 64 या आकड्याचा पाठलाग करायचा आहे तो अर्थातच सप्तकोटेश्वर बाली केपीएम संघाला. तर पाहूयात काय घडेल काय बिघडेल या मॅच मध्ये. बस बस म्हणजे हाय खुर्ची बस. ओपनिंग जोड़ी पर गणेश रहेगा. गणेश का साथ कौन देगा? मडगांव टीम नदी बाली कप्तान अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए नाम बताने के लिए. छोटा बच्चा ही सही. और पहली गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद. टिप्पा खाती गेंद अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर ले जहां पर लेने का आशा साबित होते हुए
64 लोग का सवाल मैदान पर जिससे पीछे। और इस बार बढ़िया लाइन ऑफ टर्न के बाहर रखा लाइन को, देखिए गति के साथ गेंदबाजी। प्रवीण वाघेला के हाथ में गेंद जा चुकी है। प्रवीण वाघेला जो कि पॉइंट कर फील्डिंग करते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी है। अब बारी कैप्टन एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए नाम बताने के लिए। इस बार सीधा खेला शॉट को, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से पार, 6 रन। बाली कैप्टन सो प्लीज अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए नाम बताने के लिए। यूट्यूब पर मुकाबले चल रहे, नाम नहीं पता हमें। और इस बार लेग स्टंप पर एक वाइड बॉल का इशारा। टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा मतलब 7 रन पर। इस बार पॉइंट पर खेला प्रवीण वाघेला, जहां पर जा रहे ग्राउंड फील्डिंग के लिए। पहला रन बहुत तेज निकला और प्रवीण जब तक पहुंच पाएंगे ना, ये दूसरा रन भी मैदान पर बनता हुआ। गोविंद और गणेश ये जोड़ी मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद, बिल्कुल अच्छी लाइन वहां पर देखिए, तो उसी गति के साथ गेंद निकले विकेट कीपर के हाथ में। रजत ने गेंद को उठाया, रन लेने के आसार लगभग समाप्त हो चुके हैं। अनुकूल जो कि इस वक्त मिड ऑन पर लॉन्ग ऑफ पर खड़ा है, बिल्कुल सर्कल के पास खड़ा होता हुआ। रुद्रा जो कि साइड इस वक्त शॉर्ट कवर पर, बिल्ला जो कि प्रवीण जो कि वाघेला। ओह बढ़िया लाइन, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर। ये डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहला ओवर समाप्त हो चुका है। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 9 रन पर पहुंचा, मैच में कोई नुकसान नहीं। तो चलिए इस वक्त कलंगो चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का पड़ाव लगभग इस साल कुछ लेवल बढ़ा। इस साल तालुका वाइज की प्रतियोगिता मैदान पर एक अच्छा माहौल और पहला प्राइस लगभग 1.5 लाख रुपया। भाई पैसा वसूल खेल मैदान पर, बहुत बढ़िया मैचेस हो गए और इस बार सीधा खोद के निकाले गोल लेने के आसार समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर जो कि मैदान में पहुंचा मात्र 10 रन पर, 9 रन पर। ठीक है, 9 ये टोटल है सामने से, लगभग 64 का पीछा करना आपको मैदान पर बहुत सुंदर मुकाबला है ये। तुषार गेंदबाजी के मोर्चे पर और लाइन थोड़ी सी दूर रखी, ऑफ के ज्यादा बाहर रखिए, वाइड बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचा। अमेय नाइक इस वक्त बैटिंग एंड पर, बिल्कुल बॉलिंग एंड पर जो कि मुन्ना दाभोलकर और तीसरे अंपायर हमारे सिद्धेश हरम्बलकर, ये 3 अंपायरों की जोड़ी आज काम कर रही है मैदान पर। ओह बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी और ये आउट।
इस बार बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल खुद के निकाला गेंद को ऑन साइड पर, 1 रन वहां पर निकला और टीम का स्कोर पहुंचा 10 रन पर। देखिए आज तुषार ने एक बाबूसो 11 पर पहुंचा। बाबूसो जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, लेफ्ट हैंड खिलाड़ी स्ट्राइक पर। देखिए माहौल कितना बेहतरीन मैदान पर। बाबूसो, गोविंद और बाबूसो ये जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे, गोविंद मैदान पर। और इस बार रिवर्स खेला, विकेट कीपर के हाथ में और ये आउट मैदान पर। अब नया बल्लेबाज तुषार मैदान में पहुंच चुका है। देखिए अभी तक अच्छी बॉलिंग इस खिलाड़ी की गेंदबाजी पर, और ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट के लिए जगह बना रहे थे वो, चूके लाइन से सनम के हाथ में गेंद जा रही है। वहां पर देखिए विकेट कीपर ने, एक जमाने में विकेट कीपर्स को सनम साहब करते, आज उनके पास विकेट कीपिंग का दौर नहीं है। आज रजत जो कि युवा लड़के बिल्कुल अच्छे फॉर्म में मैदान पर, अच्छा बिल्कुल ड्राइव किया गेंद को, 1 रन वहां पर बनेगा। प्रवीण जो कि इस वक्त, प्रवीण वाघेला जो कि इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं, स्क्रीन पर 1 रन वहां पर बनता हुआ, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद तक पहुंचा मैदान पर, 2 विकेट नुकसान के बाद 12 रन पर। गेंदबाजी में तब्दीली, रजत जो कि अनुकूल विकेट के पीछे रहेगा। वेदांत रहेगा इस वक्त, अनुकूल का भाई छोटा वेदांत विकेट कीपर बल्लेबाजी, आखिर में बल्लेबाजी करता है, लेकिन आज जैसे माहौल बना ना मैदान पर, रजत के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। ओ बढ़िया लाइन वहां पर, गति बिल्कुल नहीं दे रही है, इनको पता है कि गति देनी नहीं है मैदान पर। 64 रनों का फासला बिल्कुल तय करना पड़ेगा। टीम का स्कोर एकदम से बिल्कुल शांत बैठा है, मतलब 12 रन पर मैदान में। और फिर से ऑन साइड पर ताकत लगाते हुए देखिए वेदांत पहुंच चुके, 1 रन वहां पर बनता था, ओ निशाना लगता तो आउट थे मैदान पर। हमला थोड़ा सा कठिन था मैदान में, 1 ही रन वहां पर बनेगा, 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 13 रन मैदान में। रजत गुड़ालकर जो कि वापस मोर्चे पर, देखिए 64 रनों का फासला तय करना है आपको, वो भी 30 गेंदों पर। ओ कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर। कौन सी मैच है? लाइन देखिए, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर। खेल बिल्कुल रुक चुका मैदान में, 64 रनों का पीछा करना है रजत गुड़ालकर मोर्चे पर गेंदबाजी के। इसके बाद का मुकाबला श्री रवानाथ फोंडा वर्सेस
श्री डबल ए श्रवणी क्रिकेटर्स जो कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। फोंडा वर्सेस श्री डबल ए। मोठा नाव घ्या, मोठा नाव दिला। वापस खेल चलेगा मैदान में। श्री रवनाथ फोंडा वर्सेस जो कि इस वक्त, और इस बार देखे शरीर के दूर से खींच कर खेला प्रवीण है वहां पर। आसान नहीं होगा उस कैच को रोकना, लेकिन तब तक रन बनेंगे मैदान पर। प्रवीण चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है और अमृत वेल्ले करने इशारा कर दिया शायद मेरा नजर से। हम बार कितने रन मिलेंगे? 4 रन के लिए। श्रवणा फोंडा वर्सेस डबल ए श्रावणी क्रिकेटर्स। बारदेश कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। सरल नहीं मैदान पर है, क्योंकि गेंदबाजी पर अमृत वेल लेकर मैदान पर। वापस खेल, और इस बार और पिच गेंद खेला, गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ सी मारेगा पर रुद्रा ने वहां पर क्या फील्डिंग की मैदान पर। हालांकि बाउंड्री से बिल्कुल रोकी जा चुकी है और सिर्फ इशारा अंपायर का आता हुआ 4 रन के लिए। भाई से रुद्रा ने इशारा कर दिया मैदान पर चौबे का। टॉस के कप्तान पहुंचिए। अब तेरालीस रनों की आवश्यकता मैदान में जीत से पीछे। मैच में बहुत बढ़िया माहौल मैदान पर। इस बार हो उड़ाया 6 रन। पर निकल चुका। अब देखिए आराम से 37 रन भी है मैदान पर। 2 गेंदों पर 10 रन अमृत के। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, ये थोड़ी सी बाहर निकली गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। 36 रन की आवश्यकता मैदान पर अंतिम 10 गेंदों पर। इस बार बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच सी मारेगा से पार 6 रन। बल्लेबाज ने गेर बदला मैदान पर। हेलीकॉप्टर शॉट खुद के निकाला इनको ऑन साइड पर। एक ही रन वहां पर बनता हुआ, सीधा थ्रो आता हुआ स्ट्राइक एंड पर। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 35 रन पर 35 पर। ओ शरीर के दूर से खेला वाइड बॉल, 1 रन खाते में निकलता हुआ और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा इस समय पर 36 पर। ओ इस बार फुल टॉस बनाकर खेला
कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, इसका मतलब एक ही रन वहां पर बनता हुआ। एक रन के साथ 37 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल अच्छी वापसी मैदान पर। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर बन चुका है 37 रन पर। पहली गेंद 27 रन जिससे पिचर, वहां से भी इशारा मैदान पर ये डॉट गेंद का था। देखिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है मैदान पर। बिल्कुल बढ़िया, एक सटीक यॉर्क पर मोर्चे पर, यहां से आसान नहीं था हाथ खोलना। 4 गेंदे और 27 रन मैदान पर। देखिए दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन निकले, तीसरे में सिर्फ 6 रन निकले, वहां से मोमेंटम बिगड़ा मैदान पर। अगर उस 2 ओवर में अगर 15-20 रन बन जाते तो शायद कहीं ना कहीं हालात थोड़े से बदले होते मैदान पर। और ये देखिए इलेक्शन के बाहर वाइड बॉल, 26 रन की आवश्यकता अंतिम 4 गेंदों पर, जो कि मैच थोड़ा सा मुश्किल मैदान पर चलता हुआ। इस बार शॉट सिलेक्शन तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उतने रन नहीं मिलेंगे मैदान पर। आसान सा मौका ये। ठीक है, रन गति जहां पर बढ़नी थी वहां पर रकम हो गई। 2 ओवर में पहले 3, दूसरे और तीसरे ओवर में सिर्फ 9 रन निकले। और वो कहीं पर 20-22 के ओवर होते तो शायद ये हालात थोड़े बदले होते कि आखिरी ओवर में 15-14 बन जाते रहते। 27 मतलब बहुत रह गए। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट, सीमा रेखा से पार, 6 रन। ऑफ टर्न के बाद कट किया गेंद को, बैक पॉइंट के बगल से निकली गेंद और सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और इसी के साथ ये मुकाबला भी, इनिंग भी समाप्त हो चुके हैं। कोण मैन ऑफ द मैच बघ रे।